Hello, my dear competitor aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Okay, in the last video, we had decoded the GS1, GS2, and GS3 paper of UPSC mains and MPSC. Now, today's we are going to decode the GS4 paper of UPSC and MPSC mains. Right? This is the GS4 is the most scoring subjects. So GS4 statement is ethics, integrity, and aptitude. Right? Now we are going to decode one by one. Okay, first listing out. Okay, so this is the most scoring, right? if you are beginner means आप यदि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर एक साल से कर रहे हो, है ना, आपके पास मेंटोर नहीं है या फिर कोई गाइडलाइंस नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि अच्छे लगते तो शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, राइट, ताकि हमें और अच्छे वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिले। ओके, सो यदि आप बिगिनर्स हो तो क्या करिए, यूपीएससी की गवर्नमेंट साइट है उस पर जाइए, सिलेबस डाउनलोड कीजिए। ओके, और फिर हमारे वीडियोस जो है स्टार्टिंग के वो डिकोडेड है, वो देखिए, आपको यूपीएससी का एग्जैक्ट व्हाट इज सिलेबस और यूपीएससी क्या है वो समझ में आ जाएगा। जनरली 6 महीने तो लगते हैं यूपीएससी को, और ऊपर से 2 साल जो है ना, प्रिपरेशन के लिए लगते हैं, राइट। यदि आप शिद्दत से पढ़ाई करोगे तो 2 साल में हो जाएगा। ओके, सो moving towards the GS4 ethics, integrity, and aptitude, right? This is the UPSC, MPSC, right? This is the mains. GS4, okay, the 250 marks, 3 hours. Okay, so the statement of GS4 statement, okay, the ethics, integrity, and aptitude, right? So what is ethics, integrity, and aptitude, right? Ethics means नैतिकता, integrity means अखंडता, and aptitude means योग्यता। Okay, so now we are going to decode the one by one in point form, right? So the ethics and human interface, okay. Second point, human values. Third point, attitude. Fourth point, aptitude. Fifth point, fourth point, aptitude, and foundational values of civil services. Okay, fifth point, emotional intelligence. Okay, sixth point, civil services values. And ethics in public administration. Okay, done. Seventh, probity in governance. And last point, case studies on above issues. So my dear aspirants, now we are going to decode one by one what is ethics and human interface, right? What is ethics and human interface? Ethics means what? Ethics means it is a how to wrong and what is wrong and what is right,
व्हाट इज मोरली बैड एंड व्हाट इज मोरली गुड, मीन्स कौन बताएगी कि ये राइट है एंड रॉन्ग है, कौन बताएगा ये सही है और ये अच्छा है और ये बुरा है, तो ये एथिक्स बताएगा, राइट। देन ह्यूमन इंटरफेस मीन्स एथिक्स इन ह्यूमन मीन्स that is a relationship between private and public life, right? So this is the human interface, right? So the human values means the lesson from the real life experiences, right? Reformers, great personalities, right? Leaders, okay, and philosophers, जो भी इनसे जो भी प्रिंसिपल्स वैल्यूज है वो उसे ह्यूमन वैल्यूज बोलेंगे। Attitude means what? The attitude means the opinion, right? The opinion towards the anything, right? तो it may be good and bad, okay? Means attitude is यहाँ पे जनरल टर्म है कि attitude means negatively देखा जाता है, वो attitude means is its opinion, right? है ना? तो आप अप्रोच टुवर्ड द एनी प्रॉब्लम्स, राइट, कि आप कैसे उस प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हो, किस नजरिए से देखते हो, उसको बोलेंगे एटीट्यूड, राइट। सो the aptitude and foundational values of civil services, aptitude means योग्यता and foundational values for civil services, यदि आप गवर्नमेंट में हो, गवर्नेंस में हो, एडमिनिस्ट्रेशंस में हो, राइट, तो आपकी योग्यता क्या है और फाउंडेशनल वैल्यूज क्या है, मतलब योर अप्रोच टुवर्ड द वीकर सेक्शन, वल्नरेबल सेक्शंस, राइट। तो डेडिकेशन टुवर्ड्स द सिविल सर्विसेज क्या है, ये आपको वो वैल्यूज सिखाते हैं, राइट। और इसमें इश्यूज क्या है, द इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट, द व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, इस कॉन्सेप्ट एट द हाउ दिस एप्लीकेशंस, है ना, the use of these applications in real life and public and private lives, in also the governance also and in civil services, okay। सो द इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका एप्लीकेशंस क्या है वो हम अभी देखेंगे। सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, सिविल सर्विसेज के वैल्यूज क्या है ना, कंपैशन टुवर्ड द टॉलरेंस, है ना, डिवोशन, एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, इन पब्लिक रहे या प्राइवेट, वो आपका एथिक्स है ना, आप हाउ टू, कोड ऑफ कंडक्ट आपका कैसा है ना, कोड ऑफ बिजनेस कैसा है, मतलब आप किस इस तरह से बिहेव करते, एक्ट करते, वो सब है, right? The probity in governance, probity means is the quality in governance, means the principal quality of honesty, transparency, accountability, right? We that we are expecting from these officers and government officials, that is the probity in governance, right? So this is the important to overcome the corruptions, right? So these are the concept, ओके तो इसके लिए कौन सी बुक पढ़ना है वो हम बताएंगे। दीज आर द अबोव द पॉइंट्स, 7 पॉइंट्स आर द कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स, राइट। एंड 8th पॉइंट द केस स्टडीज ऑन अबोव इश्यूज, जो भी ऊपर के कॉन्सेप्ट है वो इश्यूज पे, उसके एप्लीकेशन पे केस स्टडीज पूछी जाती है। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, आप कलेक्टर हो, है ना, डिस्ट्रिक्ट के, और दो पार्टीज है, वो दोनों आपके रिलेटिव्स है, उनमें कुछ मतलब कॉन्फ्लिक्ट है, तो आप कैसे टैकल करेंगे, आप सोचिए, राइट। दोनों रिलेटिव्स हैं और आपको सॉल्व करना है, तो आपका यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, यदि ये आप ऑफिसर हो तो क्या आप पर्सनल रिलेशन देखोगे या जस्टिस देखोगे, तो वो सोचिए, आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको टैकल करने हैं। दिस इज द केस स्टडीज ऑन अबोव इश्यूज, राइट। सो ये अबोव इश्यूज जो 7th है, इसके ऊपर 125 मार्क्स और इसके ऊपर 125 मार्क्स, टोटल मिला के 250 मार्क्स हो जाते, राइट। तो ये किताब पढ़ने के लिए आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा, रेफरेंस बुक, द लेक्सिकॉन। द लेक्सिकॉन बुक इज मोर देन इनफ, राइट, इट इज मोर देन इनफ। तो अभी ये बुक तो पढ़ोगे, तो कैसे पढ़ना है वो बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे पढ़ना है आपको। तो कैसे पढ़ना है, ये किताब उठाना, ये जो ऊपर के पॉइंट है सिलेबस वो उठाना, राइट, वो देखना और इस किताब से पढ़ना, वो जो भी डेफिनेशंस है, कोर डेफिनेशन, उसको समझना है आपको, ठीक है। कुछ चीजें रिमाइंड करना है, समझना है, समझने के बाद अपने लैंग्वेज में वो कॉन्सेप्ट को उतारना है। ये पहले सेक्शन में हो गया, उसके बाद ये आपको समझ में आ गया, राइट। तो उसके बाद जो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एप्लीकेशंस इसमें पूछे गए, कि वो जैसे कि वैसे, जैसे अभी मैंने बताया इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर केस स्टडीज बनाएंगे और आपको वो सॉल्व करनी है, राइट। तो आपको बताता हूँ कि यदि टॉपर्स के जो भी आंसर्स है
वो सिर्फ आपको गाइडलाइंस दे सकते हैं, वो गाइडेंस के तौर पे लीजिए, उनके कॉपी मत कीजिए। वो स्ट्रक्चर अभी तो चल रहा है कि स्ट्रक्चर जैसे के वैसे पुट कर दे। देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, आपका वैल्यूअर्स यूनिकनेस देखना चाहते हैं ना, आपकी ओन इंडिविजुअलिटी क्या है, राइट, आपका ओन कॉन्सेप्ट क्या है, आपका ओन टैलेंट, राइट, तो ये आपके ही मन से लिखना है, राइट। तो जो भी है, यदि आपके डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं तो वो वहां पे लिख सकते हो, आपके साथ ऐसे हुआ है इथिकल जस्टिस, है ना, तो वो केस स्टडीज आप डाल सकते हो, राइट। तो अपने मन से लिखना है, तो आपका जो इनर थॉट्स है वो वहां पे प्रेजेंट होंगे। यदि आप सच में इथिकल से, तो आपका बहुत ही ऑसम पेपर लिख पाओगे आप, ठीक है, और आपको मार्क्स मिलेंगे, ये सबसे हाईएस्ट स्कोर कर सकते हो, इसमें लिमिट नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो और आपकी रैंक बढ़ा सकते हो, ठीक है, वैसे ऐसे है, राइट। तो हम ये इसके बारे में है, समझ में आया होगा। तो किताब को कैसे पढ़ना है, तो उसको लो, आप उसके कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खुद के मन से लिखना है, आपके डेली एक्सपीरियंसेस लिखना है आंसर्स में, बस दैट्स इट, है ना। तो एक बुक है लेक्सिकॉन मोर देन इनफ, और ये पढ़ने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको सोचना है। आप पढ़ने के बाद, यूपीएससी ऐसा है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, इसके कारण लिखो, है ना, इसके कॉजेस लिखो, इसके इम्पैक्ट लिखो, ऐसे नहीं आते, जनरल टर्म्स में आते। ये यूपीएससी इज नॉट अ स्पेशलिस्ट, इट इज अ जनरलिस्ट, राइट, मींस जनरल स्टडीज, राइट। तो कोई भी सब्जेक्ट ना आपको डेप्थ में नहीं, हॉरिजॉन्टली पढ़ना है, सभी टर्म्स इस अंडर द सन, सभी टर्म्स को आपको पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्ट क्या है। उसका डिटेल नहीं पता तो भी चलेगा, लेकिन हर चीज आपको पता होनी चाहिए कि एग्जैक्ट क्या है, राइट। ये जनरलिस्ट है, राइट। आप किसी भी चीज में डेप्थ में जाते हो तो वो पीएचडी है, तो पीएचडी नहीं करनी यहाँ पे, हमें स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। कलेक्टर कभी भी स्पेशलिस्ट नहीं होता, जनरलिस्ट होता है, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट का नॉलेज होता है, सभी डिपार्टमेंट्स का, इसलिए सब डिपार्टमेंट्स उनके हाथ में होते, राइट। सो ये है एथिक्स, राइट। सो द एथिक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन लाइफ, राइट। वो उधर ही नहीं है तो आपके डेली लाइफ में, कोई भी यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आप डेली लाइफ में करो। आप कोई भी कॉलोनी में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो कैसे बिहेव करते हो, है ना, पब्लिक में, प्राइवेट जॉब्स में, या फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, तो सभी के लिए। तो आप यदि नहीं भी बने कलेक्टर, तो भी एक अच्छा सिटीजन तो बन पाओगे, राइट। इसलिए प्रिपरेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग फर्स्ट जो पेपर है एसए का, राइट, ये भी 250 का है, 250 मार्क्स, ये भी 3 आवर्स का है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए, राइट, इसमें 4 एसे आते हैं, कितने, 4, राइट। सेक्शन बी आता है, इसमें सेक्शन बी, इसमें भी 4 ऐसे आते हैं, राइट। ये 125 मार्क्स, ये 125 मार्क्स, ओके डन। देखिए क्या है, ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये चार में से, तो ये सब्जेक्ट कौन से रहते हैं, फिलोसॉफिकल हो सकता है, इथिकल हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है। ये वो चार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे स्टेटमेंट्स आते हैं, उसमें से कोई भी एक आपको चॉइस करना है, कोई भी एक, राइट। तो एक 125, दूसरा 125, ऐसे मिला के 250 मार्क्स ऐसे ऐसे में होते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट स्कोरिंग है, इसके लिए आपका बहुत हॉरिजॉन्टल लेवल पे स्टडी होनी चाहिए, राइट। और यूपीएससी टॉपर्स के आंसर शीट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो गाइडलाइंस देते हैं आपको, राइट, रास्ता दिखाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। और थर्ड होता है, ये हो गया, है ना, सेकेंड एथिक्स, ये हो गया फर्स्ट, और थर्ड होता है जो है ऑप्शनल, है ना, मेरा तो ऑप्शनल ज्योग्राफी है, राइट, ये है ऑप्शनल पेपर, राइट, ज्योग्राफी। देखिए आगे आने वाले लेक्चर्स में ज्योग्राफी के हम ऑप्शनल के पूरे लेक्चर सीरीज बना देंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऊपर, जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक रहेगा। आपको वीडियोस लाइक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, राइट, थैंक यू।